قسمیں ہیں. ایک ہے ضمیر شخصی، دوسری ہے ضمیر موصولہ، اور تیسری ہے ضمیر استفہامیہ، اور چوتھی ہے ضمیر اشارہ، اور پانچویں ہے ضمیر تنکیر. آج ہم انہی پانچوں پر آپ سے گفتگو کریں گے. عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر آپ کا رحمان اردو اسٹڈی یوٹیوب چینل میں خیر مقدم ہے، استقبال ہے. آج ہم قواعد کے ضمن میں ضمیر کے متعلق ہم نے آپ کے سے ایک تفصیلی گفتگو کی تھی، لیکن ہم نے اس کی قسموں کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی تھی. اب ہم ضمیر کی جو 5 قسمیں ہوتی ہیں ان 5 قسموں پر ایک ایک کر کے گفتگو کریں گے. سب سے پہلے آج ہم نے ضمیر شخصی، جو اس کی 5 قسمیں ہیں، ایک ہے ضمیر شخصی، ایک ہے ضمیر موصولہ، ضمیر استفہامیہ، ضمیر اشارہ اور ضمیر تنکیر. تو ہم نے سب سے پہلے ضمیر شخصی لیا ہے، اور ضمیر شخصی پر ہم ایک آپ سے تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں. ضمیر شخصی ہے کیا؟ وہ ہے جو اشخاص کے لیے استعمال کی جاتی ہے. ضمیر کے بارے میں ہم نے بتا دیا تھا اس کے پہلے. اب ہم اس کی قسمیں پر بات کر رہے ہیں. ضمیر جس میں کوئی نام کسی کا ذکر کیا جاتا ہے تو ایک بار کیول اس کا نام فقط ایک بار کہنے کے بعد اب ضمیروں کا استعمال کیا جاتا ہے. اس سے کیا ہے، جملے میں یا تلفظ میں خوبصورتی آتی ہے. تو ایک ہے ضمیر شخصی، وہ ہے جو اشخاص کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اس کی 3 صورتیں ہیں. ایک ہے ضمیر متکلم، دوسرے ہے ضمیر حاضر یا مخاطب، اور تیسرے ہے ضمیر غائب. ضمیر متکلم کہتے ہیں بات کرنے والا اپنے لیے جو لفظ استعمال کرتا ہے. اس کو اور آسان زبان میں اگر ہم کہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک وہ جو بات کرتا ہے اسے متکلم کہتے ہیں. یا ہم ضمیر متکلم کہیں بات کرنے والا اپنے لیے جو لفظ استعمال کرتا ہے، جیسے میں، ہم، میرا، مجھ، مجھ میں اور مجھ سے. دوسرا ہے اس کی ضمیر حاضر یا مخاطب. حاضر مانے سامنے والا، متکلم جیسے ہم کلام کرنے والے ہو گئے، اب ایک سامنے والا ہو گیا. یہ اس کی ضمیر حاضر یا مخاطب، خطاب کرنے والا، بات کرنے والا سامنے. بات کرنے والا اپنے مخاطب کے لیے جو لفظ استعمال کرتا ہے، جیسے آپ، تم، تم کو، تمہارا، یہ ہو گیا. ایک تیسری اس کی صورت ہے ضمیر غائب. وہ آدمی جو غائب ہے، یا وہ چیز یا وہ اشخاص جو غائب ہے، جیسے بات کرنے والا ایسے شخص کے لیے جو وہاں موجود نہیں ہو، جیسے وہ، اس نے اور ان. یہ 3 اس کی صورتیں ہیں اور تینوں کی مثالیں ہیں. اب ان مثالوں کے بعد ایک ہم مثال دے دیتے ہیں تینوں کی، جس سے آپ کو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آئے. جیسے پہلی، ذاکر نے کہا میں پڑھ رہا ہوں، تو میں متکلم کی مثال یہ ہو گئی، ضمیر شخصی متکلم کی مثال. خالد نے واحد سے پوچھا آپ کیا کر رہے ہو، حاضر کی مثال ہو گئی. زاہد نے حامد سے پوچھا راشد کا فون آیا، یہ غائب کی ضمیر یا ضمیر غائب کی مثال ہو گئی. ایک چیز اور آپ کو یہاں تھوڑا سا ذہن نشین کرا دیں، ضروری چیز تھی کہ اردو میں ضمائر میں تذکیر و تانیث کا کوئی فرق نہیں ہوتا. جو اردو کی ضمیر استعمال ہوتی ہے، جیسے وہ، اس، تم، میرا، تجھ، مجھ، یہ سب جو استعمال ہوتا ہے، اس میں مذکر اور مؤنث میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. مثلا لڑکا لڑکی دونوں کے لیے وہ ہو، تم، آپ، دونوں کے لیے ہے. جبکہ انگریزی میں مذکر کے لیے تو ہے ہی، اور مؤنث کے لیے شی کی ضمیر استعمال کی جاتی ہے. اسی طرح ضمیر غائب میں واحد و جمع دونوں کے لیے وہ کا استعمال کیا جاتا ہے. اور بھی اس میں اور بھی تفصیلیں ہیں، لیکن اتنا ضروری ہے، یہ ہمارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر ہم اتنا ہی جانیں. اس سے زیادہ بھی اور جانا جا سکتا ہے، اس میں اور بھی تفصیلیں ہیں، لیکن یہ اتنا ہمارے علم کے لیے بہت بہتر ہے. اب ہم اس کے بعد ضمیر شخصی کے بعد آپ کو ضمیر موصولہ کے بارے میں بات کریں گے. تو دوسری قسم اس کی ہے ضمیر موصولہ. موصول مانے پائی ہوئی چیز. وہ ضمیر ہے جو کسی کا پتہ یا حالت بیان کرے اور ساتھ ہی ساتھ
दो जुमलों को जोड़े। वो ज़मीर है जो किसी का पता या हालत बयान करे और साथ ही साथ दो जुमलों को जोड़े। उसके साथ हमेशा एक जुमला होता है जिसमें उसका मर्जा होता है। मर्जा माने लौटना होता है। जैसे हम कोई बात कहते हैं तो उसका मतलब वो जुमला जो होता है वो लौटता हुआ होता है। ये ज़मीर शख्सी ऊपर है, लेकिन इसमें एक चीज़ और होता है क्या, कि दो जुमलों को आपस में जोड़ने का काम करती है। ज़मीर मौसूला जो होती है वो दो जुमलों को आपस में जोड़ने का काम करती है। मिसाल, जैसे वो किताब जो कल खरीदी गई थी गुम हो गई। अब सोचिए, खरीदी गई थी, गुम हो गई, लौट रही उसी की तरफ बात। जिसका कलम हो ले जाए, ले जाए, जिसका हो ले जाए, इसी को मर्जा कहते हैं, लौट जाए। मिसाल है, वो किताब जो कल खरीदी थी गुम हो गई और जिसका कलम हो ले जाए। अब जो, जिसे, जिस, ये सब क्या है, ये ज़मीर मौसूला है। बीच में देखिए, वो किताब जो खरीदी, जो यहाँ है, जिसका, तो ये जो है ये ज़मीर मौसूला है। ये आसानी के साथ आप समझ सकते हैं, जो, जिसे और जिस। अब इसके बाद हम ज़मीर मौसूला के बाद ज़मीर इस्तिफ़हामी पर आपसे बात कर रहे हैं। ज़मीर की दो किस्में हमने आपसे बयान कर दी। तीसरी किस्म है उसकी ज़मीर इस्तिफ़हामी। इस्तिफ़हाम के माना होता है पूछना, सवाल करना। उसी लफ्ज़ से आप उसकी तारीफ आसानी से कर सकते हैं। आज यहाँ एक चीज़ और बताना ज़रूरी भी समझ रहा हूँ कि जो भी कवायद में लफ्ज़ होता है, आप अगर गौर करें तो उन्हीं के मानी से उसकी तारीफ को निकाल सकते हैं। जैसे इस्तिफ़हाम या और भी इस तरीके से आता है। इस्तिफ़हाम के माने होता है सवाल करना या पूछना। आप देख लें, ज़मीर इस्तिफ़हामी वो ज़मीर जो सवाल पूछने या करने के मौके पर बोली जाए। सवाल पूछना या करना, यहाँ इसको हटा कर, वो ज़मीर जो सवाल पूछने या करने के मौके पर बोली जाए, जैसे कौन, क्या। मिसाल देख लें, कहाँ से आए हो, क्या चाहिए, ये सवाल का निशान लगा हुआ। कहाँ से आए हो, क्या चाहिए। अब इसमें एक चीज और आती है जिसको बताना जरूरी है कि कौन और क्या। कौन जो हर्फ है, लफ्ज है, वो जानदार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि क्या बेजान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें और भी लफ्ज आता है, जैसे कहाँ, क्या, किधर वगैरह भी इस्तेमाल किया जाता है। ये भी ज़मीर इस्तिफ़हामी के ज़िम्मे में आता है। लुग़त में जो है इस्तिफ़हाम के माना पूछने या सवाल करने के होते हैं। ज़मीर की चौथी किस्म ज़मीर इशारा है। इशारा जैसे हम इशारा करते हैं, ये वो, इस तरीके से, यही इशारा का माना है। तो हमने अभी बताया था कि हम अगर लफ्ज़ के मानी पर जाएं तो उससे हमको तारीफ आसानी से पता चल जाएगी। ज़मीर इशारा वो ज़मीर जो इशारे के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, उसको ज़मीर इशारा कहते हैं। वाहिद और जमा में एक ही हालत रहती है। वाहिद और जमा का मतलब एक लोग हों या तीन लोग हों, वाहिद हों या जमा हों, दोनों में क्या हालत एक ही रहती है। इसमें दो इशारे होते हैं, एक करीब के लिए होते हैं और एक बईद के लिए। ज़मीर इशारा में जो ज़मीर इस्तेमाल की जाती है इशारे के तौर पर, वो दो हैं, एक करीब के लिए और एक बईद के लिए। करीब के लिए और दूर के लिए। करीब के लिए जैसे ये है और बईद के लिए जैसे वो। ये आपका हो गया ज़मीर इशारा। अब इसकी आखिरी जो किस्म है वो ज़मीर तनकीर, इनकार लफ्ज़, अनजान बनना, नहीं जानना। हम नहीं जानते, होता है, कोई बात पूछे आदमी कहता नहीं जानते। ज़मीर तनकीर वो ज़मीर है जो गैर मुअय्यन शख्स या चीज़ के लिए इस्तेमाल की गई हो। गैर मुअय्यन, जिनका कोई मुअय्यन ही ना हो, फिक्स ना हो जिसे कहते हैं, या कोई शख्स या किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाए। ज़माइर तनकीर दो हैं, कोई और कुछ। अब आप इसको मिसाल से समझें। जैसे एक तरफ हमने लिखा अहमद आया है,
फिर हमने लिखा कोई आया है। तो आप एक चीज समझें, यहाँ हमने बिल्कुल साफ हो रहा है कि नहीं यहाँ अहमद आया है। पहली हालत में क्या है, इस पहले वाले जुमले में अहमद के आने की साफ हालत का पता चलता है, लेकिन दूसरी हालत में जो इस ज़मीर तनकीरी की मिसाल है ज़मीर तनकीर की, उसमें पता चलता है कि कोई आया, मतलब पता ही नहीं कि कौन आया, अनजान हो गए, इनकार हो गया, अनजान बन गए, कुछ नहीं जान रहे कौन आया। लेकिन यहाँ बता रहे अहमद आया, तो ये ज़मीर तनकीर की मिसाल नहीं है। ज़मीर तनकीर की मिसाल ये है कोई आया है, लेकिन हम इसको समझाने के लिए आपके सामने पेश कर रहे हैं। इसी तरीके से रशीदा ने कहा था, तो ये इसकी मिसाल नहीं है। रशीदा ने कहा था, यहाँ साफ होता है कि किसी ने कहा, रशीदा ने कहा, लेकिन किसी ने कहा था। जब किसी ने कहा तो कोई चीज़ यहाँ मुअय्यन नहीं, यानी गैर मुअय्यन हो गई। लुगत में तनकीर के माना अनजान के होते हैं। एक चीज़ और है, हालांकि कोई और किसी भी जो है वो भी इस्म की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं, ये भी ज़मीर कहलाते हैं, सही है। गरज ऐसे ज़मायर जिनसे इसमें शख्स का साफ तौर से पता न चलता हो, इसमें शख्स का साफ तौर से पता न चलता हो, उन्हें ज़मीर तनकीर कहते हैं। जैसे हमने बताया कि लुगत में तनकीर के माना अनजान बनना, लिहाजा अनजान अशिया या अफराद के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ज़मीर ज़मीर तनकीर कहलाती है। वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब। उम्मीद है कि आप तमाम नाज़रीन को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो हासिल करने के लिए, दस्तयाब होने के लिए आप रहमान उर्दू स्टडी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाने में मदद करें। आपकी मदद से दूसरों को भी इस्तिफ़ादा होगा, और इसी के साथ उसको लाइक भी करें। आज के लिए बस इतना ही। आप तमामी नाज़रीन और अहबाब का तहे दिल से मशकूर व ममनून। शुक्रिया।